Hello students, in the previous lecture number 7 we have studied the meaning of direction cosines of a line. For that we first find alpha, beta, gamma direction angles, then their cosines are called direction cosines. For every such line we can have three more numbers A, B, C, which are called direction ratios of that line. The numbers A, B, C are called direction ratios of the line which line whose direction cosines are LMN. If this condition is satisfied, L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C. डायरेक्शन रेशियोज को आप शॉर्ट में एब्रिवेटेड फॉर्म में DRAS ऐसा लिख सकते हैं. These ratios are equal. Then A, B, C, these numbers are called direction ratios of that line whose direction cosines are LMN. Or in other words, you can also say, you can also give the statement like this: the numbers which are proportional to LMN, the numbers A, B, C which are proportional to LMN, direction cosines of that line, are called direction numbers या फिर direction ratios. Now, if all the three ratios are equal, you can equate each ratio is equal to some constant k या फिर लैम्बडा, जो भी कांस्टेंट यूज करना है कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी L A into lambda, M B into lambda, N is equal to C into lambda. A, B, C, if we are given, then we should be able to find LMN, or LMN are given A, B, C. There is a relation between direction cosines and direction ratios. What is that relation? जैसे आपको ए बी सी दिए, डायरेक्शन रेशियो दिए, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, LMN कैसे निकलेंगे? L इज इक्वल टू A इंटू लैम्बडा. लेकिन लैम्बडा कैसे निकलेगा? तो लैम्बडा निकालने के लिए हमको LMN का रिलेशन मालूम है. क्या है रिलेशन? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर is 1 always. तो इनका स्क्वायर अगर कर दिया आपने, तो L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, या फिर L की वैल्यू जो A इंटू लैम्बडा हमने लिखे, B इज इक्वल टू M लैम्बडा, C इज इक्वल टू L इज इक्वल टू
A lambda, m is equal to b lambda, and n is equal to c into lambda. In case squares की sum is always 1. This is what we know. L square plus m square plus n square is equal to 1. इसका यूज हम कर सकते हैं. L square यानी a square lambda square plus m square means b square lambda square, n square means c square lambda square. This will be 1. lambda square कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर a square plus b square plus c square. So what is lambda square? 1 upon a square plus b square plus c square. lambda हमको लैम्बडा ही चाहिए था, अंडर रूट ले लो इसका. 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट पता नहीं, उतना ही. Where what are A, B, C? They are the direction ratios. What are element? Direction cosines of some line. तो लैम्बडा की वैल्यू अगर यहाँ रखते आप तो एल एम एन तीनों वैल्यूज मिल जाएगी. अच्छा, लैम्बडा की यहाँ दो वैल्यूज रह सकती, प्लस और माइनस, इसलिए एल एम एन की भी वैल्यूज आपको दो प्रकार से लिखते आएगी. This is our lecture number 8 on vectors. So, what will be L? A into lambda means A into lambda का मीनिंग 1 अपॉन, तो A अपॉन हो जाएगा वो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. What will be N? m plus or minus b upon same thing under root of a square plus b square plus c square. And n plus or minus c upon under root of a square plus b square plus c square. So this is how we find L, M, N by using A, B, C. Now here we note the first thing, direction cosines of a line. LMN अगर है, direction cosines of a line LMN, तो कौन से 3 नंबर्स अगर लेंगे हम तो रेशियोज इक्वल बनेंगे, उन नंबर्स को बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी. जैसे मान लो 1 2 3 लेने से अगर रेशियोज इक्वल बनते हैं, अगर रेशियोज इक्वल बनते हैं तो इनको बोलेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर LMN.
अगर 1 2 3 डायरेक्शन रेशोज है तो 2 4 6 इनके लिए भी रेशोज इक्वल ही बनेंगे। इनके डबल ले लिए हमने, हमको रेशोज ही तो इक्वल हो ना। डबल लो, ट्रिपल लो, हाफ लो, 1/2 का 1 का हाफ 1/2, 2 का हाफ 1, 3 का हाफ 3/2। इनको भी आप बोल सकते डायरेक्शन रेशोज। तो रेशोज इक्वल होना, प्रोपोर्शनल होना नंबर्स, तो ऐसे प्रोपोर्शनल नंबर्स का हम एक नहीं, ऐसे अनेक infinite sets we can have. So every line will have unique direction cosines but infinite sets of direction ratios. A line can have infinite infinitely many direction ratios but unique प्लस एल या फिर माइनस एल एम, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन अगर अपोजिट आ गई तो यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस। देन सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब हमने वेक्टर का डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, अब डायरेक्शन रेशोज डिफाइन किए, वेक्टर को लिए थे हमने ए बार इज इक्वल टू क्या, a1i प्लस a2j प्लस a3k ijk, where the unit vectors along coordinate axis। तो वहां पर cos अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, cos अल्फा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए बार, cos बीटा सेकंड डायरेक्शन कोसाइन, cos गामा थर्ड। तो a1 अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड, a2 अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड, a3 अपॉन a बार की मैग्नीट्यूड, दीज आर नथिंग बट cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो मैग्नीट्यूड से हम अगर डिवाइड करते एक आधे वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को, तो आपको मिलता यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार, उसको ए कैप से डिनोट कर सकते हैं हम। तो यहाँ a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार टाइम्स i प्लस a2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार टाइम्स j प्लस a3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार टाइम्स k कैप। या फिर इनको cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k कैप। तो in other words, if we find unit vector in the direction of the given vector a bar, then the coefficients of ij k in that unit vector will be called as direction cosines of that vector। उनको ये एलिमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं आप।
unit vector, components of unit vector along the given vector. तो जब a1 अपॉन a कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा है या यल है, तो व्हाट विल बी a1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू यल, या यल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार. a2 कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू यम a2. a3 कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू n. तो यल यम n का यूज करके हम a1 a2 a3 लिख सकते. Where what are a1 a2 a3? They are nothing but the coefficients of ijk in the given vector a bar. given vector a bar की अगर बात करना है तो जैसे पॉइंट लेते हैं आप यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर पता है, ट्रिपलेट एक्स वाई जेड बोलो, तो ये वेक्टर OP will be given by xi plus yj plus zk, या फिर a1i plus a2j plus a3k. Position vector of the point can be written in this manner. This will be position vector of some point, या कोई भी वेक्टर दे सकते हैं आपको. इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड बोले तो वो लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, OP बार हो या फिर AB बार हो या CD बार हो, कोई भी वेक्टर, उसको हम ijk के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो a1 अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड, उसको L बोलेंगे हम. तो a1 इज इक्वल टू, a1 का मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये बनेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर. कभी कभी वेक्टर आपको ऐसा भी दिया जा सकता, ए बी बार, यहाँ पर x1 y1 z1, यहाँ पर x2 y2 z2, इधर a1 a2 a3, इधर b1 b2 b3, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, वो बनेगा ये डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस इज इक्वल टू उसका अंडर रूट. ये डिस्टेंस बोले तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए बी बार की मैग्नीट्यूड. अच्छा, इन तीनों नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशोज ऑफ दैट वेक्टर बोल सकते. उसका रीजन क्या है? इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस है यल एम एन. तो a1 a2 a3 को डायरेक्शन रेशोज कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि उनके रेशोज इक्वल बनेंगे. जैसे यल एम एन यहाँ लिखते, इधर में a1 a2 a3 लिखते, या x1 y1 z1, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही तो है वो, जो भी x y z होंगे कोऑर्डिनेट्स होंगे. यल अपॉन a1 कितना होगा? यल अपॉन a1. इसका यल का मीनिंग, जब a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार हम जब बोलते, तो यल अपॉन a1 वो हो जाएगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड. यम अपॉन a2 कितना? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार. मतलब ये तीनों रेशोज 1 अपॉन क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार. n इज इक्वल टू a3 अपॉन था ना मैग्नीट्यूड,
तो रेशोज इक्वल बनते हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्शन रेशोज बोल सकते हैं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ द गिवन वेक्टर A1, A2, A3, A1, A2, A3 are the direction ratios of the vector A bar. LMN will become the, वो तो डायरेक्शन कोसाइंस है ही। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को क्या बोलेंगे हम? लेंथ OP, उसको R से भी डिनोट किया जा सकता, R इंटू एल या L इंटू R। वेक्टर में एक एंड आपको दिया है A1, A2, A3, और दूसरा एंड नहीं दिया, वो निकालने के लिए बताया x, y, z। और इस वेक्टर की आपको लेंथ दी है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड दी है, तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? यहाँ पर वेक्टर जब बनाएंगे तो ए बी बार बनेगा x माइनस A1, तो x माइनस A1 I प्लस y माइनस A2 J। If A is equal to A1, A2, A3, and B is equal to x, y, z, then what are the direction ratios of vector AB? They are x minus A1, दूसरा डायरेक्शन रेशियो y माइनस A2, तीसरा डायरेक्शन रेशियो z माइनस A3। क्यों? क्योंकि जब ए बी बार आप तैयार करोगे तो आई जे के फॉर्म में x2 माइनस x1 आई, मतलब x माइनस A1 आई प्लस y माइनस A2 j प्लस z माइनस A3 के। तो आई जे के जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर, चाहे ए बार हो या फिर ए बी बार हो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार, वेक्टर ए बी बार बोलो या पूरी लाइन बोलो, these are the direction ratios। अब यहाँ पर this value will be equal to x minus A1 is equal to, अगर ये LMN आप डायरेक्शन कोसाइंस बोलते तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वहां पर वेक्टर ए बी बार है तो उसका मैग्नीट्यूड, उसी को आप शॉर्ट में लिखना है तो r, या फिर d, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। तो यहाँ का जो ये स्केलर है जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बार हम लिख सकते, उसको आप d के फॉर्म में भी लिख सकते, d इंटू एल डी, उसके बाद में y माइनस A2 एम डी z माइनस A3 इज इक्वल टू एन डी, वेयर व्हाट इज d? d is the
distance between A and B. B is the distance between A and B. ए भी बोल सकते हैं आप, या फिर उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार भी बोल सकते हैं। तो इन रिलेशन से हम, अगर ये एक एंड दिया है दूसरा एंड नहीं दिया, लेकिन ये लेंथ दे दिया आपको, बी की वैल्यू मालूम है, तो x विल बी इक्वल टू a1 प्लस LD, प्लस और माइनस बोल सकते हैं, यहाँ पर दो रह सकते हैं, L M N या फिर माइनस L माइनस M माइनस N। तो ऐसे दो सेट्स, एक पॉइंट इधर रहेगा दूसरा पॉइंट इधर आएगा, उतने डिस्टेंस पे D इज सेम। y की वैल्यू निकलेगी a2 प्लस और माइनस MD, z a3 प्लस और माइनस MD, and so the coordinates of which point x y z किसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हमने, b के coordinates of b which is at a distance d from A whose coordinates are given. A1 A2 A3, and having direction cosines LMN plus minus R। पहला कोऑर्डिनेट A1 प्लस और माइनस LD, दूसरा A2 प्लस और माइनस, तीसरा A3, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट will denote the coordinates of point at that distance. With this we turn to the remaining examples of 5.3। हमने 9th तक इसके पहले लेक्चर में नंबर 7 वाला उसमें डिस्कस किए थे। अभी लेक्चर नंबर 8 में उसके आगे के जो प्योरली डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, इस नॉलेज का यूज करके हमको सॉल्व करना है। जैसे 10th एग्जांपल में क्या क्वेश्चन है, a vector, if a vector has direction angles (45° and 60°), find the third। डायरेक्शन एंगल। अब 3 डायरेक्शन एंगल्स आर ऑलवेज देयर फॉर एवरी लाइन इन स्पेस। एक रहता है अल्फा विथ एक्स एक्सिस के साथ, दूसरा रहता बीटा विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, तीसरा जेड।
तो एक को डिनोट करते हैं हम अल्फा से। तो 45 डिग्री एक्स एक्स के साथ में है कि वाई एक्स के साथ में है वो हमको नहीं पता। तो अपन ले सकते हैं अल्फा की वैल्यू 45। अगर एग्जांपल में पर्टिकुलरली दिया है विथ एक्स एक्सिस 45 विथ वाई एक्सिस 60, तो जो सिंबल है उसी को यूज करना होगा। यहाँ ऐसा कुछ दिया है तो अपने मन से इसको आप बीटा भी ले सकते हैं, फिर उसको गामा या अल्फा, अल्फा बीटा गामा, उसमें तीनों में से दो दिए तो तीसरा पूछा है व्हाट इज गामा। द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री वी नो that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, this is 1। यहाँ अल्फा बीटा पुट करोगे हम मिला cos square 45 डिग्री प्लस cos square 60 डिग्री प्लस cos square gamma। cos 45 कितना अपॉन रूट 2 उसका स्क्वायर cos 60 कितना 1/2 उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा। वो टर्म वैसे ही रहेगी, ठीक है। 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बनाओ। 2 + 1 ऊपर वो बनेगा 3/4, उधर ट्रांसफर किए तो 1 - 3/4 होगा cos स्क्वायर गामा की वैल्यू। सो व्हाट इज cos स्क्वायर गामा, 4 - 3 है 1/4। So cos gamma will be 1/2, ठीक है। cos gamma जब 1/2 है प्लस और माइनस 2 रह सकते इसमें, तो गामा की वैल्यूज भी 2 आएगी। when cos gamma is equal to plus 1/2, then what is the value of gamma, and when cos gamma is minus 1/2, then it implies gamma is equal to, तो gamma 60 अगर है तो cos 60, ठीक है। 1/2 is nothing but cos of 60, so gamma will be 60 degree। माइनस 1/2 किसका cos है, cos of पाई माइनस थीटा यानी cos थीटा होता, cos of पाई माइनस 60 180 - 60 यानी माइनस cos 60 होगा। माइनस 1/2 मीन्स माइनस cos 60। इस माइनस cos 60 को हम cos of 180 माइनस पाई माइनस 60 ऐसा लिख सकते हैं। 180 - 60 मीन्स 120 cos 120, तो इसका मतलब गामा होगा 120 डिग्री का। गामा की वहां पर 2 वैल्यूज रहेगी, आइदर
प्लस 60 और 120। Sixty degree means how many radians? Pi by 3 radians. तो when we are given out of 3 any 2 direction angles, third can be found out. When all 3 are given alpha, beta, gamma, and you are asked to find their direction cosines. Direction cosines of that line, if you want to find, then just take cosines of the angles. एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया है वैसा एग्जाम्पल। उसके बाद में 12th में आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए है, मतलब ए बी सी की वैल्यूज दी है, ए बी सी दी है, तो एल पूछा है उसने, तो एल इज इक्वल टू ए इंटू लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 1/i थी, तो हमने फॉर्मूला बनाए थे प्लस और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यम की वैल्यू बी अपॉन एन की वैल्यू सी अपॉन। तो डायरेक्शन रेशियोज दिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते, वैसा एग्जांपल है नंबर 12 वाला। उससे भी आगे जाके हमको अगर मान लो वेक्टर का एक एंड दिया है, दूसरा एंड पूछा है, और उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं along with the distance between the 2 points, means magnitude of that vector दिए है, तो how to find the other end, हमने रिमार्क्स में ये सब लिखे। तो वैसा एग्जांपल एक दिया है उसने नंबर 13 वाला। The direction ratio of AB bar are -2 +2 1 if A is equal to 415। पहला एंड दिया आपको, दूसरा एंड पूछा है, इसके अलावा लेंथ ए बी वो भी दे दिया 6। लेंथ ए बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार, then you are asked to find the coordinates of B, let the coordinates of B be x, y, z। तो जो लास्ट रिमार्क था अपना, उसमें x इज इक्वल टू a1 प्लस, ये जो डायरेक्शन रेशियोज दिए है उनका यूज करके पहले एल निकालो, उसके बाद में a1 प्लस और माइनस एल इंटू दिस d डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी बार। ए दिया आपको 415, लेंथ ए बी
6 direction ratios of AB bar -2 to 1. That means A is equal to -2, B is equal to 2, C is equal to 1. डायरेक्शन कोसाइंस पहले निकालेंगे ऑफ ए बी बार आर गिवन बाय एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर -2 है अपॉन अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 9 अंडर रूट ऑफ 9 मीन्स 3. What is m? B upon under root of same thing. B कितना है 2 अपॉन A कितना आया वही लिखेंगे यहाँ अपॉन 3 एंड व्हाट इज m? C अपॉन मीन्स 1 अपॉन 3. इनके साइंस अगर तुमने चेंज कर दिए +2/3 -2/3 -1/3 तो वो बनेगा सेकंड सेट जो ए बी बार के डायरेक्शन रेशियोज है उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर हो जाएगा वो. हमको चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी are given by पहला x1 प्लस और माइनस d इंटू इसको हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट स्मॉल डी से डिनोट अगर करते तो प्लस माइनस डी इंटू एल या एल डी लिख सकते. दूसरा कोऑर्डिनेट y1 प्लस x1 y1 z1 की जगह हमने a1 a2 a3 यूज किए थे. a1 a2 a3 गिवन पॉइंट नोटेशंस कोई भी यूज करो आप फॉर्मेट वही रहेगा. अब a1 क्या है 4 प्लस और माइनस यल कितना है यल इंटू मतलब -2/3 इंटू डी. व्हाट इज डी 6 पहला कोऑर्डिनेट. दूसरा a2 के जगह 1 प्लस और माइनस यम कितना है 2/3 यम इंटू डी 6. तीसरा 5 प्लस और माइनस n इंटू डी n is 1/3 times 6. तो एक बार प्लस लेंगे दूसरी बार माइनस तो दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे. एक यहाँ तो दूसरा उधर. 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 माइनस ये 3 से कैंसिल कर देंगे 3 2 जा 6 2 इंटू 2 4
4 माइनस 4, दूसरा इधर 1 प्लस 4, तीसरा 5 प्लस 2। इधर अगर नीचे वाला साइन अगर यूज करते तो 4 माइनस 4, 4 माइनस माइनस है प्लस 4, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 माइनस 4, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 into 2 4, 3 2 जा 6, 2 into 1 2, 5 माइनस 2। आगे बढ़ाओ, पहला पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 0 5 7, और दूसरी तरफ वाला पॉइंट 8 माइनस 3 3। इस तरह के दो पॉइंट्स बनेंगे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कर सकते। तो ये थे पूरे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के और डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर के एग्जांपल्स। सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको देखना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा स्कोर, क्योंकि चैप्टर इजी है, वेक्टर्स का चैप्टर थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा लेंथी भी है। लेंथी है तो उसके ऊपर वेटेज भी है ज़्यादा, 12 मार्क्स का वेटेज है इस पे, इसलिए अच्छे से तैयारी करो, यू कैन गेट कंप्लीट मार्क्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वी वर डिस्कसिंग, दो टाइप्स के प्रोडक्ट बताए थे, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट हमने बताया, उसके ऊपर के एग्जांपल भी हुए। अभी डिफाइन करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a bar and b bar. How to define vector product? उसके लिए जैसे आपको एक वेक्टर दिया है a बार, दूसरा दिया है b बार, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, समझो कोई इनिशियल वेक्टर्स इधर उधर से होते भी होंगे स्टार्ट, तो भी हम ऐसे उनको बना सकते। कुछ एंगल दोनों वेक्टर्स में रहेगा, थीटा विद एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। अब इनका प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी बनना चाहिए, तो कौन से वेक्टर को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ये दो चीजें बताना पड़ता है उसमें। तो देखो a बार b बार, हमको a बार इंटू b बार लेना है, a बार b बार का प्रोडक्ट लेना है, a बार b बार का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे a इंटू बी इंटू साइन थीटा। स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। उसकी डायरेक्शन कौन सी लेंगे, परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार बोथ, परपेंडिकुलर टू a बार एंड b बार बोथ। लेकिन परपेंडिकुलर बोले तो ऊपर है कि फिर नीचे है, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो वो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। ए बार से बी बार तक जब स्क्रू आप रोटेट करोगे, राइट हैंड स्क्रू या फिर और fingers of right hand, if we rotate from A bar to B bar, then to which direction this thumb points? A bar से B bar तक अगर आप
अपना राइट हैंड की फिंगर्स रोटेट करते तो दिस विल पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, थंब पॉइंट्स द अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन का आपको, जो डायरेक्शन राइट हैंड रूल फॉलो करता है, वो डायरेक्शन रहेगी आपकी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस वेक्टर्स, मीन्स कंप्लीट प्लेन। ऐसा रहेगा वेक्टर। इट विल फॉलो द राइट हैंड रूल। तो यहाँ डेफिनेशन अगर लिखना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स a bar and b bar is a vector quantity which vector quantity? Whose magnitude is number 1. A into b into sin थीटा। a को हम मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, b को हम मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसमें जो रोटेशन है ए बार से बी बार तक राइट हैंडेड स्क्रू का, या फिर राइट हैंड रूल जो फॉलो होता है, तो ए बार टू बी बार आप अपने फिंगर्स रोटेट कर रहे हैं कि बी बार टू ए बार रोटेट कर रहे हैं। अगर बी बार से ए बार तक रोटेट करोगे तो उसका डायरेक्शन बन जाएगा अपोजिट। पॉइंट द thumb of the right hand will point the downward direction, opposite direction. सेकंड, मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पर साइन थीटा इसलिए लिए हमने क्योंकि थीटा अगर मान लो ए बार से बी बार तक है तो एक डायरेक्शन शो करेंगी, तो बी बार से ए बार तक लिए तो दूसरी डायरेक्शन। माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा, नेगेटिव वेक्टर आपको मिलेगा। मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ लिखे, डायरेक्शन के बारे में परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ। नंबर 3, that vector will follow a right hand rule. In short, the vector product of two non-zero vectors a bar and b bar is called is a vector quantity satisfying these conditions. Magnitude is ab sin theta, perpendicular to both a bar and b bar, and follows a right-handed rule. तो अगर ए बार से बी बार तक जाता है, सपोज दिस इज द वेक्टर, ऐसा रहेगा वो, इसको हमने शो किया इधर नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल, या नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसको एन बार से डिनोट कर सकते हैं। और इस डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर आप यूनिट वेक्टर लेते तो यूनिट वेक्टर है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड 1, तो उसको कैप चढ़ा दो, एन कैप।
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, इसको अगर डिनोट करना है, इट इज डिनोटेड बाय ए बार इंटू बी बार। ऐसा नहीं, क्योंकि डॉट यूज किए हमने स्केलर प्रोडक्ट के लिए, तो क्रॉस यूज करेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आप ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सिर्फ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो स्केलर है। वेक्टर बनने के लिए इस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। तो इस मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इन दैट डायरेक्शन, where what is n cap? It is the unit vector. Which unit vector? Perpendicular to both a bar and b bar, and is in the direction of a right-handed screw, or it follows the right hand rule. Follows the right hand rule. तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बाद उसके रिमार्क्स, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के रिमार्क्स लिखे थे। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट जीरो कब बनता? स्केलर प्रोडक्ट जीरो जब थीटा वहां पर 90 डिग्री का, मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब बनेगा? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनेगा when थीटा इज जीरो, मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक तो पैरेलल रहना चाहिए, नहीं तो एक ही लाइन पे रहना चाहिए। ऐसे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वो बनेगा जीरो इफ a bar is parallel to b bar, then what is theta? Theta is zero, that means sin theta, sin zero, zero। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा इंटू एन कैप, वो जीरो वेक्टर बनेगा पूरा। देन ए बार क्रॉस बी बार, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, will become zero vector. It is a vector quantity. आपको अगर इस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बार की मैग्नीट्यूड इंटू बी बार की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है नहीं? ये पूरा राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड बोले तो ये तो स्केलर से है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड 1, तो इंटू 1 की तो उतना ही रहेगा। उसके बाद आपको अगर पूछा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार बोथ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a bar and b bar both will be given by, जो आपका वेक्टर है a बार क्रॉस b बार, ठीक है, a बार क्रॉस b बार, इसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, काम खत्म।
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इसी को हम डिनोट किए थे एन कैप से। इसका यूज क्या है एन कैप का? कभी कभी एग्जांपल में फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 which is perpendicular to a bar and b bar both, तो पहले एन कैप निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एन कैप निकालने के लिए पहले आपको ए बार क्रॉस बी बार मिलाना पड़ेगा। ए बार क्रॉस बी बार, उसको डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड से। अब ए बार क्रॉस बी बार कैसे मिलाना है? हाउ टू फाइंड ए बार क्रॉस बी बार? उसके लिए आपको दो वेक्टर्स अलग अलग लेना पड़ेगा आई जे के फॉर्म में। उसमें ब्रैकेट्स अगर तुम ओपन करते तो कहीं आई क्रॉस आई आएगा, कहीं आई क्रॉस जे आएगा, कहीं जे क्रॉस के आएगा। तो ऐसे जो यूनिट वेक्टर्स है आई जे के अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उनकी मैग्नीट्यूड्स तो 1 बनेगी, लेकिन आई क्रॉस जे कितना? रिमार्क नंबर 4 में आई क्रॉस जे कितना होगा? इट इज द, जैसे ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला अगर लगाते आप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आई और जे में एंगल कितना है? 90 डिग्री का, इंटू एन कैप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप के जगह पे हम लिख सकते एन कैप यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। अब ये जो ट्रिपलेट है आई जे के की, these are the unit vectors which are mutually perpendicular to each other। I और J को परपेंडिकुलर बनेगा K, J और K को परपेंडिकुलर बनेगा I, और I से लेके तो J तक ऐसे फिंगर्स आप कर्ल करते तो thumb will point towards positive z axis, along that positive z axis k cap is the unit vector, और इसलिए I क्रॉस J कितना? k कैप। J क्रॉस k कितना? J क्रॉस k। J से लेके k तक अगर आप राइट हैंड फिंगर्स कर्ल करोगे तो इट विल थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, तो I कैप मिलेगा, एंड k कैप k क्रॉस I, it will point towards J cap। सिमिलरली हाँ, तुमने अगर मान लो आई क्रॉस के लिए तो फिर क्या आएगा? जे क्रॉस आई क्रॉस जे के जगह जे क्रॉस आई लिए, जे क्रॉस आई बनेगा माइनस टाइम्स के कैप, आई क्रॉस जे की जगह पे जे क्रॉस आई लिए तो यूनिट वेक्टर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। उसी प्रकार के क्रॉस जे कितना होगा? माइनस आई कैप, आई क्रॉस के कितना? तो ये जो ट्रिपलेट है आई जे के की, आप अगर ये ऑर्डर मेंटेन करते साइक्लिक
ऑर्डर I से J तक, J से K तक, K से I तक, I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I। तो ये तीनों वेक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे। उल्टा कर दिया तुमने, J क्रॉस I माइनस K, K क्रॉस J माइनस I क्रॉस K माइनस J। What can we say about I क्रॉस I? दोनों वेक्टर सेम है मतलब एंगल बिटवीन देम जीरो। द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर भी बोल सकते, पैरेलल भी बोल सकते। थीटा जीरो रहेगा मतलब साइन जीरो जीरो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट विल रिड्यूस टू अ जीरो वेक्टर। व्हाट कैन वी से अबाउट J क्रॉस J? अगेन इट विल बी जीरो। K क्रॉस K, zero vector. So with these cross products of standard unit vectors, basis unit vectors, we can approach towards the expression for A bar cross B bar. Let us consider the two vectors as, पहला वेक्टर A बार को डिनोट करेंगे हम A1I, लेट A1I प्लस A2J प्लस A3K। B बार इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K। कैप्स we form their cross product, A क्रॉस A बार क्रॉस B बार, पहला ब्रैकेट क्रॉस दूसरा ब्रैकेट, ओपन करो। A1I कैप से तीनों को मल्टीप्लाई, पहले मिलेगा A1 B1 I क्रॉस I, बाद में प्लस A1 B2 I क्रॉस J, इसको J क्रॉस I नहीं लिखना है, स्केलर को आप A1 B2 की जगह B2 A1 लिख सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स को अगर तुम उल्टा करोगे तो वहां पर दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, हालांकि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तीसरा A1 इंटू B3 I क्रॉस K, और तीन मिलेंगे आपको A2J कैप के लिए, A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J क्रॉस K प्लस अब A3K से A3 B1 K क्रॉस I प्लस A3 B2 K क्रॉस J, A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस K। अब जीरो कितने होंगे? 9 में से 3 विल बी जीरो, जहां I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K, पहला जीरो। फिर दूसरा तीसरा रहेगा
A1 B2 इंटू कितना I क्रॉस जे कितना हुआ I क्रॉस जे के बनता प्लस A1B3 I क्रॉस के इट इज माइनस जे I क्रॉस के माइनस जे बाद में जे क्रॉस I है A2B1 के साथ जे क्रॉस I बनेगा माइनस के कैप और फिर जे क्रॉस जे है 0 A2B3 जे क्रॉस के that is I cap plus A3B1 K cross I that is J plus A3B2 K cross J cross K I है K cross J minus I cap plus 0 तो 6 यहाँ पर बचेंगे उसमें से आप I की 2 J की 2 और K की 2 ऐसी टर्म्स को एक जगह ले सकते हैं जैसे यहाँ पर I की 2 कौन सी है अंडरलाइन कर लो I अगर तुम कॉमन लेते I क्या तो ब्रैकेट में क्या रहेगा पहला प्रोडक्ट A2B3 ठीक है माइनस A3B2 उसके बाद में J वाली टर्म्स देखो एक J वाली यहाँ है माइनस J बाहर ले लेंगे तो यहाँ पहली टर्म बनेगी A1B3 और दूसरी टर्म J की कौन सी ये है A प्लस है तो माइनस J जब बाहर ले रहे हैं आप तो ये प्लस का बनेगा माइनस A1B3 A3B1 उसके बाद में K वाली टर्म देखो ये पहली टर्म पॉजिटिव है तो प्लस के बाहर क्या दिखेगा अंदर A1B2 माइनस A2B1 और ये एक प्रकार का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है वो हम x के लिए मतलब फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 जिसकी पहली रो होगी I J K दूसरी रो रहेगी A1 A2 A3 तीसरी रो B1 B2 B3 so this will be the formula for A bar cross B bar वेरीफाई कर लो I into A2 B3 minus A3 B2 पूरा बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में